Good morning, students. In this video, we will do some other extra important question of the lesson, The Tiger King. What is the matter of vital importance the author wants to disclose at the beginning of the story? Why? कौन सा मैटर है जो राइटर डिस्क्लोज करना चाहता है? बिल्कुल इसका आंसर लेसन के बिल्कुल स्टार्टिंग में है. The author wants to disclose in the very beginning the fact that the Tiger King has reached the final abode of all living creature. In other words, जिसको हम बोलते हैं that is, the king is dead. अगर दूसरे शब्दों में देखें तो राजा मर गया है और फाइनल अबोर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, ये सभी प्राणियों का आखिरी जो घर है वहाँ पर टाइगर किंग पहुँच चुका है, वहाँ पहुँच चुका था. ये किसने कही थी? बिल्कुल स्टार्टिंग में कही थी. द ऑथर वॉन्ट्स टू क्लियरिफाई द मैटर बिकॉज ही इज़ श्योर दैट एवरी वन हु रीड्स अबाउट हिम would naturally want to meet this man of indomitable courage face to face. What did the astrologers predict about the child when he was born? Astrologers predicted that the child would grow to become the warrior of warriors, the hero of heroes, champion of champions. They also foretold that the child born under this star would one day have to meet its death. अब एस्ट्रोलॉजर ने क्या प्रेडिक्शन की? उन्होंने कहा कि बच्चे का जो बच्चा बड़ा होगा ना वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, योद्धाओं के योद्धा के रूप में, हीरो के हीरो के रूप में, चैंपियन के चैंपियन के रूप में. लेकिन उसने भविष्यवाणी की, फोरटोल्ड मतलब भविष्यवाणी की कि बच्चे का इस नक्षत्र में जिस बच्चे का जन्म होता है वो अवश्य ही एक दिन मरता है. तो ये तो कोई भविष्यवाणी नहीं हुई और इस छोटे से बच्चे ने भी ये बात समझ ली. अब उसका नेक्स्ट यहाँ पर पार्ट आएगा. What was the miracle that happened when the astrologers predicted about the death of the born child? The newborn 10-day-old child uttered a phrase after hearing the astrologers' prediction. The phrase shocked and surprised everyone. And मत लगाना. The child said, "O wise prophets," when everyone was turned into shock, silence, and लगाओ यहाँ पे shock and silence. The baby said again, "O wise prophets, it was I who spoke." Why did the chief astrologer put his finger on his nose in wonder? The chief astrologer, देखो इसको आप क्वेश्चन को यहीं से कर सकते हैं. The chief astrologer put his finger on his nose in wonder because आप इसमें आप ऊपर वाला क्वेश्चन आंसर डाल सकते हो, लेकिन हम अलग से कर लेंगे. अगर आप करना चाहो एक ही बना सकते हो इनका आंसर. The chief astrologer reacted thus because a baby barely 10 days old could open its lips in speech, and not only that, it raised intelligent questions. इतना ही नहीं कि वो बोला, उसने बड़ा इंटेलिजेंट जो क्वेश्चन था वो उठाया. This was incredible and rather like the blatant issue by the War Office. बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन उसने पूछा. What reason did the astrologer give in support of his answer? The astrologer fixed his eyes upon the little prince and explained that the prince was born in the hour of the bull. The bull and the tiger were enemies. Therefore, death would come from the tiger. What happened when the chief astrologer said that the death would come from a tiger? जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उसकी मृत्यु डेथ से होगी. अब इसमें पहले क्वेश्चन में जो पूछा था ना, बच्चे ने ये पूछा था कि मृत्यु का तरीका बताओ, तो उसने बताया कि इसका बच्चे का जन्म हुआ वो बुल नक्षत्र में हुआ है, और जैसे ही जो टाइगर और बुल हैं वो एक दूसरे के एनिमीज़ हैं, तो इसकी जो मृत्यु है निश्चित रूप से टाइगर से होगी. तो जब चीफ एस्ट्रोलॉजर ने ये सब कहा तो दैट वुड कम फ्रॉम टाइगर उसने जब बताया तो बच्चे का क्या रिएक्शन रहा? एज सुन एज द क्राउन प्रिंस जंगजंग बहादुर हर्ड द वर्ड टाइगर, ही सेड he did not get thrown into a quake, and he only gave a deep growl, and terrifying words, "Let tigers beware," emerged from his lips. What was the reply of the astrologer when the Tiger King asked the astrologer what he would do if the 100 tigers were killed? अब एस्ट्रोलॉजर ने जब उसे पूछा कि भाई, एस्ट्रोलॉजर ने जब टाइगर किंग को चैलेंज किया कि क्या होगा, सॉरी,
टाइगर किंग ने एस्ट्रोलॉजर से कहा कि क्या होगा अगर मैं 16 टाइगर भी मार लूँ तो एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा, उसने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया और कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ऐसा हुआ द एस्ट्रोलॉजर रिप्लाइड दैट द ही वुड टीयर ऑल हिज बुक्स एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी एंड सेट फायर टू देम, उनमें आग लगा देगा अपनी किताबों में, एंड कट ऑफ हिज स्टफ्ड, अपनी चोटी को काट लेगा, क्रॉप हिज हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। What did the Maharaja do to realize his ambition of killing 100 tigers? अपनी एम्बिशन को पूरा करने के लिए महाराजा ने क्या किया? देखो, इस क्वेश्चन को आपको वैसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको आना चाहिए, इसको आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके जवाब में आपको क्या लिखना है। उसने एक तो स्टेट में जो टाइगर हंटिंग थी उसको बैन किया था, एक क्वेश्चन तो ये वाला आपने इसमें ऐड करना है। दूसरा, फिर जब उसके स्टेट में टाइगर पॉपुलेशन जब ख़त्म हो गई तो उसने अपने एक जो नेबरिंग जो कंट्री है या जो किंगडम है उससे एक ऐसी लड़की से शादी की जिस किंगडम में बहुत सारे टाइगर्स हैं। तो और लास्ट में जो उसका दीवान था, तीसरा जो स्टेप था, वो जू से उसके लिए एक टाइगर लाया। ये तीनों चीज़ इसमें आनी चाहिए जब आपका कंप्लीट होगा, अगर ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग है। और अगर शॉर्ट है तो आप इसको इस तरह से तीनों ही चीज़ें दोगे, लेकिन शॉर्ट में दोगे। लॉन्ग होगा तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से डाल दोगे। Next question is, what was special about the gift the Maharaja had given to the Crown Prince on his 3rd birthday? देखो बेटा, आप सोच रहे होंगे हम करें ना करें, इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन जरूर लिख लेंगे, क्योंकि इस तरह से भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे करना है तो आप इसको एज इट इज़ उतार लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप और इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ इसको लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। What was special about the gift the Maharaja had given to the Crown Prince on his 3rd birthday? The Maharaja had decided to give a special gift to the Crown Prince on his 3rd birthday. He searched for a suitable gift and finally spotted a wooden tiger in a toy shop and decided it was a perfect gift. He paid 300 rupees to the shopkeeper, who convinced him that it was an extremely rare example of craftsmanship. अब 300 रुपये दिए उसने, और जबकि उसने क्या कहा कि ये बहुत ही ख़ास है, जबकि वो था नहीं। On the contrary, it was rough, carved by an unskilled carpenter, had tiny slivers of wood all over it. Why was the Maharaja once in danger of losing his kingdom? In his quest of procuring the 100th tiger, इसको आप ऐसे कह सकते हो कि महाराजा wanted to kill 100 tiger. So, the Tiger King imposed a ban on tiger hunting in Pratibandhpuram. A British official asked her permission to allow him tiger hunting and subsequently a photo session with the dead tiger. ये जो क्वेश्चन है ये शायद आप पहले कर भी चुके हैं, इससे मिलता जुलता नहीं आपको मिलता है तो आप इसको कर लेंगे। The king refused and thus ran to the risk of losing his kingdom, as in those days the British annexed होता है किसी चीज़ को में अलग से कुछ जोड़ लेना, यानी कि वो क्या करते थे, इंडियन किंगडम्स को भी अपने हिस्से में अपने उसमें जोड़ लेते थे, अपने किंगडम्स में। किस आधार पर? ऑन ट्रिवियल प्रिटेक्स्ट। ट्रिवियल मतलब कम महत्वपूर्ण है, भाई ये कोई ख़ास राज्य नहीं है, इसको हम अपने अंदर मिला लेते हैं। एंड प्रिटेक्स्ट होते हैं कि ऐसे रीज़न देना जो कोई ख़ास नहीं होते, यानी कि बहाना करके उसको अपने अंदर मिला लेते थे। Why did the Maharaja have to pay a bill of 3 lakh rupees to the British jewelers? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और उसने क्यों दिए थे? क्योंकि उसने एक ऐसे ब्रिटिश ऑफिसर को नाराज़ कर दिया था जो काफ़ी महत्वपूर्ण था और वो उसके किंगडम को नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए महाराज ने जो है उसको एक तरह से हम कह सकते हैं ब्राइब दिया और उसको 50 डायमंड रिंग्स उस टाइम भेजी और 3 लाख रुपए देने पड़े। At one time the Maharaja was in danger of losing his throne as he had refused a high-ranking British officer to hunt tigers in Pratibandhpuram. He was very fond of hunting tigers. ये यहाँ किसके लिए यूज़ हुआ है? ब्रिटिश ऑफिसर के लिए। And being photographed with them. Now the Maharaja stood in danger of losing his kingdom itself. So to please the British officer, यहाँ appease लिखा हुआ है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं टू
Please, the British officer, the Maharaja sent 50 expensive rings to the British officer's good lady who kept the whole lot. अब उन्होंने सोचा था एक या दो रखेंगे, लेकिन उसने सारे रख लिए. Thus the Maharaja lost 3 lakh of rupees. Why did the Maharaja decided to get married? ये उसके दूसरा स्टेप्स था उसके टाइगर्स को के जो किलिंग का जो प्रोसेस था उसको कंप्लीट करने का, कि जब उसके स्टेट में ख़त्म हो गए तो उसने दूसरा स्टेट ढूंढा, उससे एक लड़की से शादी करने की कोशिश नहीं की, शादी की, ताकि वो अपने बाकी जो रिमेन्स 30 टाइगर्स हैं उनकी टैली को कंप्लीट कर सके. द महाराजा हैड एग्जिस्टेड द टाइगर पॉपुलेशन इन प्रतिबंधपुरम, बट ही स्टिल हैड 30 more to kill, so he asked his diwan to draw up figures of tiger population in the different native states. नेटिव ऐसे मातृ होता है, यहाँ पर है मतलब आसपास के राज्यों से मतलब है. He would marry in a royal family with a large tiger population. The diwan found out the right girl and the Maharaja killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-laws. Which problem did the Maharaja face when he had killed 70 tigers? How did he solve it? अब जब उसने 70 टाइगर्स मार लिए तो फिर कौन सी प्रॉब्लम आई और उसने उसको कैसे सोल्व किया? सेम आंसर रहेगा ये ऊपर वाला इसके लिए, ठीक है. एंड कि उसने दूसरे राज्य की लड़की से शादी क्यों की, और महाराजा ने अपने जब 70 टाइगर मार लिए थे उसके बाद बाकी अपना काम पूरा करने के लिए क्या किया, तो आंसर सेम ही रहेगा. अलग अलग करना चाहो तो इसमें लिखा हुआ आप उतार लेना. हाउ डिड द टाइगर किंग बिकम द विक्टिम ऑफ द 100 टाइगर? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है. आप इसे कर चुके हैं वैसे पिछले इसमें भी, तो इसमें हम वही करेंगे कि जो 100 टाइगर था वही रीज़न बना उसकी मृत्यु का. द 100 टाइगर विद क्योज टाइगर किंग्स डेथ वॉज अ टॉय टाइगर. ऑन हिज सन्स 3rd birthday द महाराजा bought a wooden toy tiger for his son as a gift. One day while playing with this toy with his son, one of its slivers pierced his right hand. He pulled it out and continued playing. Next day, the infection flared in the Maharaja's right hand, and in 4 days it spread all over his arm, and the Maharaja was operated upon but succumbed into the injury. इसमें आप वो मैनर ऑफ महाराजा's डेथ भी आप इसमें कर सकते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो महाराजा का जो ऑपरेशन था, जो इंजरी थी, सेकंड मतलब होता है फेल टू अटेम्प्ट, यानी कि जो उन्होंने कोशिश की वो उसमें सफल नहीं हुए डॉक्टर, और महाराजा की मृत्यु हो गई. द स्टोरी इज ए सटायर ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ दोज इन पावर. ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे. इसमें जो है ना सारे आपके स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन हैं जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन किए हैं, लेकिन शुरू की कुछ एक लाइनें और लास्ट की कुछ एक लाइनें इसमें ऐड करनी है. लॉन्ग क्वेश्चन आप ये मत सोचो कि बहुत सारे हैं, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस मिला के ही सारे हुए हैं. एक एक दो लाइनों का इनमें अंतर है, ज़्यादा है नहीं. द स्टोरी सैटिराइजेज द कंसेप्ट ऑफ पीपल इन पावर. दे रिफ्यूज टू टेक नो फॉर एन आंसर एंड देयर विम्स बिकम लॉज फॉर देयर सब्जेक्ट. विम्स क्या होता है कि उनकी जो इच्छा थी कुछ करने की वो उनके सब्जेक्ट के लिए कानून बन गए, यानी कि उन्होंने एक कानून बना दिया, टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए. एंड दिस इज़ एप्टली इलस्ट्रेटेड बाय द एसेंट्रिक बिहेवियर ऑफ द टाइगर किंग. हम उसको एसेंट्रिक बिहेवियर कह सकते हैं कि एक एस्ट्रोलॉजर की बात को झूठा साबित करने के लिए उसने 100 टाइगर्स को 99 टाइगर्स को मार दिया, और जो 100वां टाइगर्स था समझो उसको भी मार दिया. उसको वो नहीं मार पाया तो उसके जो ऑफिसर्स थे उन्होंने मार दिया. Who wished to disprove an astrologer's prediction about his death. ठीक है, आगे का जो है ये आप कर चुके हैं और क्वेश्चंस में लिखना है. वैसे आपको लर्न आपको मिलेगा जब आप बाकी क्वेश्चन लर्न कर लोगे ना, जब इसको पढ़ के देखोगे आपको लगेगा ये तो हमें याद है. एंड द टाइगर्स एसेंट्रिसिटी मेड इज whimsical and conceited. He felt happy when he was informed about the presence of tiger. अब जब उसको मिला नहीं ना तो कोई टाइगर, तो उसने कह दिया था कि मैं जंगल ही नहीं छोड़ूंगा तब तक. मतलब सभी ऑफिसर्स पे भी गुस्सा, सब कुछ, बिल्कुल उसने कोई काम ही नहीं किया. तो फिर एक न्यूज़ जब आई कि एक टाइगर है अपने स्टेट में तो महाराज बड़े खुश हुए. इसमें वो आएगा कि
उनके जो टैक्सेस हैं वो माफ़ क्यों किए और फिर डबल क्यों किए, क्वेश्चन आपका था, आपने किया था पिछले वीडियो में, तो वो वाला यहाँ पर हमें लिखना है, या फिर ये एज इट इज़ लिख लेना। would have completed his mission of killing the 100 tiger and he immediately announced a 3-year exemption from all taxes. When the tiger was not raised for a few days, the king decided to double the taxes. Many officers also lost their job. Thus, in pre-partition days, the Indian rulers were scared of the British officers in their own state. They behaved like autocrats. यानी कि जो पार्टीशन से पहले की बात है उसमें इंडियन जो रूलर्स हैं, शासक थे, उनको अपने ही राज्य में धमकाया जाता था, उनको डरा के रखा जाता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स उस समय काफ़ी पावरफुल थे। तभी हमने देखा इसमें भी कि उसको अपने राज्य में एक छोटी सी बात के लिए कि उसने टाइगर्स को नहीं मारने दिया, तो उसके लिए 3 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ा उसको खुश करने के लिए। हाउ डिड द टाइगर किंग अचीव हिज टारगेट ऑफ किलिंग 100 tigers? In order to achieve his target of killing 100 tigers, the king issued a proclamation that anyone who dared to fling even a stone, इसमें लगभग पूरी जो है स्टोरी सी इसमें आ जाएगी, ठीक है। इसको आप या तो ये क्वेश्चन ही बस आप कर लेना, ये क्वेश्चन आप लिख लेना, और इसमें आपके सारे छोटे छोटे क्वेश्चन सिस्टमेटिकली लेसन की लगभग पूरी स्टोरी इसमें आएगी और आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इसमें रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी, ये आपको ज़रूर करना है। इसमें भी स्टोरी ही आएगी वैसे तो, लेकिन कुछ एक लाइनें आएंगी जो कि इसकी टाइटल को जस्टिफाई करेंगी। लेट्स सी। द स्टोरी द टाइगर किंग revolves around the king of Pratibandpuram, who is given the title due to his obsession for the tiger hunt. From the beginning, it is evident when the royal infant uttered first few words, "Less tiger beware." यानी सारी स्टोरी टाइगर के आसपास घूमती है और राजा के आसपास घूमती है। It was predicted by the astrologers that a tiger would be the cause of his death. And when the royal prince was made the king at the age of 20, he decided to kill 100 tigers to prove his prediction wrong. ठीक है, अब इसमें आप वो सारी स्टोरी डाल सकते हैं कि किस तरह से फिर उसने अपनी 100 टाइगर की जो गिनती थी उसको पूरा करा, थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें डाल सकते हैं। The entire story is a narrative of the stupid and inhuman mission of the Maharaja, who in order to prevent his death killed 100 innocent animals, but ironically he died thanks to a tiger only through it was a wooden one. आप इसमें ये भी कर सकते हैं, but ironically he was dead because of a wooden tiger and that was the 100 tiger. स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे ये इस लेसन के जो क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आपके पास 2 दिन हैं इनको लिखने के लिए और लर्न करने के लिए। आप आज ही लेंगे, कल आप इनको लर्न कर लेंगे और इस तरह से मंडे तक हमारा ये लेसन अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। बेटा एक बात और है, मैंने आपको कल भी कहा था कि जो बच्चे लर्न कर लेंगे उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर डालना है। तो इसमें भी अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो भी आपको कमेंट डालना है, और अच्छे से नहीं समझ में आया, आपको कोई दिक्कत रही है, तो भी आपको कमेंट बॉक्स में अपना जो जवाब है वो ज़रूर लिखना है, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग वीडियो देख भी रहे हैं नहीं देख रहे हैं। बेटे आपकी बोर्ड क्लास है, नॉन बोर्ड वाले बच्चे अगर नहीं भी ज़्यादा सिंसियर रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उनके मार्क्स थोड़े कम आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके अगर मार्क्स कम आएंगे तो आपको उसका अपनी पूरी लाइफ टाइम भुगतान करना पड़ेगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि उस समय स्कूल नहीं खुले थे, आप नहीं दे पाओगे ये रीज़न कि उस साल स्कूल नहीं खुले थे इसलिए हमारे कम मार्क्स आए, बिल्कुल भी नहीं दे पाओगे। आपको मार्क्स पूरे ही लेने हैं, बल्कि आपको ज़्यादा टाइम मिल रहा है प्रिपरेशन के लिए, स्कूल आपको जाना नहीं होता और बच्चे आपके पास होते नहीं बातचीत करने के लिए, तो आपको इनफैक्ट ज़्यादा अच्छी तैयारी करनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको है तैयारी से रिलेटेड अपनी, तो आप मुझे बताएंगे और अपने पेपर की अच्छे से अच्छी तैयारी रखेंगे। स्कूल खुलने की वेट ही नहीं करनी है आपको, ठीक है बेटा। बात अच्छे से समझ में आई है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।